وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حضرین جماعت، اس کی بڑائی، بزرگی، برتری وحدہ شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام اللہ کی تمام نبیوں پر، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے خطہ عرب میں پنپ رہی بے شمار بدعات و خرافات کا خاتمہ کیا، تمام انسانوں کو ایک اللہ کی جانب رجوع کرایا اور ہم تک اسلام پہنچایا۔ مگر یہ صحابہ اور اسلاف رضی اللہ عنہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جو موضوع ہے وہ ہے فتنہ ارتداد، اسباب و علاج۔ ایک سوال قائم کرتے ہیں، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ کیا اس کا گھر، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے بزنس، اس کی ڈگریاں، اس کے مقام و مرتبے، شہرت و ناموری؟ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ سوال جتنا پھیلاتے جائیں گے نظریات کے اعتبار سے شاید جواب بھی مختلف ہو جائے، لیکن ایک انسان کے لیے سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ دولت ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَأَنْتُمُ الْمُسْلِمُونَ وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمُ الْمُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے لیکن اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کر مرنا، مسلمان ہو کر مرنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ جب سب سے بڑی دولت ایمان ہے تو سب سے زیادہ حفاظت کی ضرورت بھی اس کی کرنی چاہیے، اور سب سے زیادہ اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ایمان کے درجات جو ہے بلند سے بلند وہ پایا جاتا رہے۔ ایمان کی اگر اتنی بڑی دولت ہونے کے باوجود اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو اس سے بڑی نادانی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایمان کی قدر و قیمت کے لیے واقعات کے انبار ہیں، صرف میں نام لیتا ہوا جاؤں گا۔ ایمان کی قدر و منزلت کو جاننا ہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیے، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیے، اور ایک صحابی رسول حضرت خباب بن
इबारत को पढ़िए और पूरी सहाबा की जमात को पढ़ के जाइए। अगर ईमान की कदर और मंजिलत को जानना हो तो सहाबियात में हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी को पढ़ा। ईमान की इतनी ज्यादा कदर बयान किया जाए कम है, ईमान की बहुत ज्यादा कदर और मंजिलत है। ये वही जानता है जो नया नया मुसलमान होता है और ईमान की हिफाजत के लिए उसे बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। शायद हम इस चीज को ना जान पाए, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो हमसे ज्यादा क्या गुजरा कोई। हम जिस माहौल में जी रहे हैं, हर तरफ फितने का दौर दौरा है। फितनों के ऐसे दौर में ईमान की हिफाजत की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे वक्त में जबकि खैर और शर के दरमियान तमीज कर पाना मुश्किल हो गया है, बिल्कुल कशमकश में चल रही है कि क्या खैर है क्या शर है, ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हर सालिदा रही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरु बिल आमाली फितन कतिल अलैहि मुदरिब। लोगों, आमाल की तरफ रग़बत करो, आमाल को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो, क्योंकि फितने इस तरीके से आएंगे कि तारीख क्या लेकर आएंगे, लोग नहीं जान पाएगा क्या फितना है क्या ईमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दौर ऐसा होगा कि आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम तक काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा सुबह तक काफिर हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं यदि दीनहु बिअर्दिन मिन दुनिया, वो ऐसा आदमी होगा जो सुबह को मुसलमान हो जाए, शाम को मोमिन हो जाए, शाम को मोमिन सुबह को काफिर। क्या वो ऐसे लोग होंगे जो दुनिया की मामूली चीजों की वजह से अपने ईमान का सौदा करने वाले होंगे। आज जब हम देखते हैं दुनिया के अंदर आलमी इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया में देखते हैं, खुसूसन हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जब निगाह दौड़ाते हैं, इन दिनों हमारे मुल्क के अंदर एक लहर चल पड़ी है और वो है कि इब्तिदाअ, दीन इस्लाम को छोड़कर गैर मजहब को कबूल कर लेना, इसकी लहर चल पड़ी है। क्या औरतें, क्या लड़कियां, क्या बच्चे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग तक लोग इस्लाम को छोड़े जा रहे हैं। और अच्छा, यहाँ एक नुक्ते वाली बात है जो बताने की है, यहाँ ये भी है सिर्फ खाली कुफ्र को नहीं अपना रहे हैं बहुत सारे लोग। क्योंकि मैंने मौजू इसलिए चुना, बहुत सारे नौजवान कह रहे कितनी लोग, कितनी औरतें ऐसी हैं जो दीन इस्लाम को छोड़े जा रहे हैं, कितने मर्द हैं जो दीन इस्लाम को छोड़े जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास इल्म नहीं है। आज भी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अगर 10 आदमी इस्लाम को छोड़ते हैं तो 20 आदमी मुसलमान हो गए। आज भी दुनिया में मुसलमानों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, तभी तो आप देखें। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान के अंदर क्योंकि यहाँ के हालात ऐसे हैं, यहाँ अभी मुसलमानों की बढ़ने की शरह कम हो चुकी है और इब्तिदाअ की इर्तिकाब करने वालों की शरह बढ़ चुकी है। और क्यों करना बढ़े? क्योंकि यहाँ की जो हिंदू तंजीमें हैं, हिंदुत्ववादी जो तंजीमें हैं, वो बाकायदा तौर पर टारगेट कर करके नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं, अपने नौजवानों की कि तुम किसी तरीके से मुस्लिम लड़कियों को बहलाओ, फुसलाओ, मोहब्बत के जाल में फंसाओ, इश्क के जाल में फंसाओ और तुम अपने करीब उसको करो और फिर जब अपने करीब करोगे उससे शादी करो और शादी करने के बाद उसका दीन चेंज करो, उसे घर वापसी कराओ। बाकायदा 2-2 लाख रुपए पैसे दिए जाते हैं। अभी आप जहाँ मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं, ऑफिस होते हैं, वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां पता चलेगा आपको। अभी ताजा रिपोर्ट बता रहा हूँ, अभी 9 लाख ऐसी लड़कियां हैं जो मुसलमान थी लेकिन गैर मुस्लिम से शादी करती हैं। कितने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, वो दर पे तुरे हुए हैं। और क्यों करना करे? क्योंकि उनके नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है, जबकि रोजगार नहीं है। ऐसे वक्त में उनको दुनिया की मस्ती के साथ साथ रोजगार दिया जा रहा है। मैं ऐसे वक्त में हमारे नौजवानों को और खुसूसन लड़कियों को, जिम्मेदारान को, जो माँ बाप हैं, उन सबों को कुरान की उस आयत को, सूरह बकरा की जो आयत है, वो निगाह में बराबर रखते रहना चाहिए। अल्लाह फरमाता है वला तुनकिहुल मुश्रिकीना हत्ता युमिनू वला अब्दुन मुमिनुन खैरुम मिन मुश्रिक। अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों, तुम अपनी बेटियों की शादी ना कराओ। शादी कोई कराता नहीं, जाके कर देती है। अपनी बेटियों की शादी को तुम गैरों से ना कराओ। तुम्हारे लिए गैर मुस्लिम तुम्हारे लिए तुम्हारे दामाद बने, इससे बेहतर है कि तुम्हारा दामाद एक गुलाम बंदा हो, मोमिन वाला हो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी उस सूरत के अंदर तफसील बयान किया। अल्लाह ने कहा कि ये जो लोग मुशरिक होते हैं, आपकी बेटियों को, आपकी नस्ल को ले जाकर के जहन्नम की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह जन्नत की तरफ बुलाता है। महीना दर महीना आप देखते जाएंगे तो लोग मुर्तद होने की तादाद बढ़ती जा रही है। असबाब क्या है, क्यों बन रहे हैं, ये बातें आएंगी। लेकिन इब्तिदाअ का इर्तिकाब कर लेना कितना बड़ा जुर्म है, इसको जानने की कोशिश करें। अल्लाह फरमाता है वमन यर्तद मिनकुम, अगर जो
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تمہارے موجود ہوتے ہوئے اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ رہا ہے اور تم کوششیں نہیں کر رہے ہو، یاد رکھو اللہ رب العالمین ان کی عوض میں ایسے لوگوں کو لائے گا جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، میں مجھ سے محبت کرنے والا ہوں گا. اس آیت میں ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کے ایمان کو چھوڑا گیا کہ خاموش نہیں بیٹھنا ہے، بیان کرنا ہے. یہ جو فتنہ ارتداد کی لہر بڑھتی جا رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کرنا ہے. اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی یہ ارتداد کا معاملہ ہے، اصحاب رسول رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ارتداد کا فتنہ اٹھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی کتنے قبیلوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ لوگ کسی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے، کوئی سبب تھا، ان کو آخرت کو راضی کرنا، آخرت کامیاب کرنا یہ مقصد نہیں تھا، کسی کے حلیف ہوا کرتے تھے. اب جب اللہ کے نبی ہی نہیں رہے تو اب دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. اس قسم کی باتیں ہوتی تھی. لیکن آج کے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے معمولی دنیا کے لیے کیا کیا اسباب ہیں تھوڑی اس پر بحث کرتے ہیں کیونکہ موضوع بہت بڑا ہے. کیا اسباب ہے کہ ہمارے بچے ہماری بچیاں دین اسلام کے مذہب اسلام جیسا صاف و شفاف مذہب جس میں ہر ایک کے انسانی حقوق واضح ہیں اور کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہے، انسان کو انسان بنانے والا دھرم، اتنا اچھا دھرم جس میں مرنے سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے تمام احکامات واضح ہیں، چھوڑا جا رہا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہونا، بچوں کی اسلامی تربیت نہیں ہونا، بچوں کی نگاہوں میں ایمان کے قدر و منزلت بیان نہیں کرنا، بچوں کے ذہنوں میں بعض موت کا عقیدہ پختہ نہیں کرانا، بچوں کے سامنے صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم کے واقعات نہیں سنانا. اسلام کے جو اچھے دور تھے ان دوروں بھی بچوں کے سامنے واضح نہیں کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ بچوں کو جنت کی خوشخبریاں نہیں سنانا، جہنم کی سختیاں بیان نہیں کرنا. ہم تربیت اسلام کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ہم کھانا پینا دے رہے ہیں، لباس دے رہے ہیں، یہی ہماری تربیت ہے. حالانکہ تربیت کے نام پر یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. تربیت عقیدے کے اللہ رب العالمین نے کرنے کو کہا ہے. لہذا موجودہ حالات میں یہ تو وجہ ہے کہ اسلام کیوں چھوڑ رہے ہیں کیونکہ تربیت نہیں ہوتی ہے. ایسے دور میں جبکہ فتنہ ارتداد کی لہر بڑھتی جا رہی ہے، طوفان بپا کیا ہوا ہے، تمام کمیٹیوں کی اور بڑے بڑے رسوخ والے حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ موقع بموقع دروس کا انتظام کیا جائے، محاضرات کا انتظام ہو، جہاں ایمان کی باریکیوں کو بیان کیا جائے، ایمان کی حفاظت کے تعلق سے لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہو. اس قسم کے پروگرام موجودہ حالات میں پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت پیش آ چکی ہے. اور صرف مردوں میں نہیں بلکہ اگر مردوں میں 3 پروگرام ہو رہے ہیں تو عورتوں میں آج کے زمانے میں 4 پروگرام ہو جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. خواتین میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ان کے لیے اسٹیجوں کو لگایا جانا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہو چکا ہے. تبھی جا کر یہ ارتداد کا فتنہ رکے گا، تبھی جا کر عورتوں کو ایمان کی آج کی بستی میں، ہمارے یہاں بستی میں تھوڑی بہت عورتوں کو شاید ایمان کی قدر معلوم ہو، لیکن کتنی ایسی بستیاں ہیں وہاں عورتیں جانتی ہیں گوشت کھانا مسلمان ہے، عید اور بقرعید کی نماز پڑھنا یہ مسلمان ہونا ہے، اور کچھ نہیں جانتی ہے کہ ایمان کیا چیز ہے. لہذا ضرورت ہے کہ ایمان کے تعلق سے دروس قائم کی جائے اور ایمان کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا جائے. دوسری وجہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے ارتداد کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ ہے مخلوط تعلیم، ملی جلی تعلیم. اس تعلیم کے سلسلے کو ختم کرنا پڑے گا. تعلیم کی کیا کہتے ہیں اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تعلیم چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی، دونوں تعلیم بہت ضروری ہے. لیکن یاد رکھیں وہ تعلیم نہیں ہے جس تعلیم کی وجہ سے لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، جس تعلیم کی وجہ سے لوگ اللہ کے قدر و منزلت کو بھلا دیتے ہو. لہٰذا ایسے زمانے میں ضرورت ہے کہ ہمارے بچے دنیا میں اعتبار سے جاہل رہ جاتے ہو، کم پڑھے لکھے ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے اس طرح سے کہ ان کی ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہو. مخلوط تعلیم میں ایسے مخلوط تعلیم کی وجہ سے لڑکا لڑکی ایک کے ساتھ پڑھتے ہوں، اسی تعلیم کی وجہ سے تو یہ فتنہ ہے. یورپ نے اس تعلیم کو بڑھاوا دیا. آج یورپ کی تعلیم کو مطالعہ کریے، یورپ کی زندگی کو مطالعہ کریے تو یورپ کا ہر بچہ زناکار ہوتا ہے اور وہاں پیدا ہونے والا بچہ بھی زانی بچہ ہوتا ہے، ناجائز بچہ ہوتا ہے. کیونکہ مخلوط تعلیم کے یہاں زنا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ان کے یہاں یہ ہے کہ یہ نفس کے آرام پہنچانے کا ذریعہ ہے، چاہے کسی کے بھی ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کرتے کرتے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور پھر جوانی کی عمر ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ بہت بڑی کمی ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی کمی ہے کہ ہمارے بچے لیکن تعلیم کا انکار نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم نے صرف مدرسوں میں، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آج بھی مدرسوں میں لڑکوں کے الگ مدرسے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے
हिंदुस्तान के अंदर, वैसे भी कहाँ मुसलमानों को नौकरियां मिलती हैं? बताए तो सही, जेठ गली और चंपुआ और मौलाना गोला जगन्नाथपुर, जहाँ की कोई लड़की पायलट बन गई हो, जहाँ की कोई लड़की बेहतरीन मास्टर बन गई हो, अफसर बन चुकी हो, वकील बन चुकी हो, जज बन चुकी हो, नहीं बनी है और शायद बनेगी भी नहीं अगर मुसलमान घराने में पैदा है। जो हालात बताते हैं, तो क्या जरूरत है आगे जब करके उनको इतना पढ़ाइए, बेकार नहीं कर रहे हैं, इतना जरूर पढ़ाइए कि वो कुछ ना कुछ अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज कर सकती हो। और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका दीन इस्लाम की तालीम। हमारे यहाँ बच्चे सब पढ़ रहे हैं। इस बस्ती के अंदर कितने बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले, कितनी बच्चियां हैं मदरसे में पढ़ने वाली? हमने मदारिस के तालीम को एक तरीके से इतना कम आका हुआ है, इतना कम कर दिया है, हमने रिस्क से उसको जोड़ दिया है। अरे रिस्क से तालीम को नहीं जोड़ना चाहिए, रिस्क को इंसान को, तालीम को इंसान बनाने के लिए दिया जाता है। रिस्क से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्या यहाँ जितने लोग पढ़े हुए हैं सब भूखे मर रहे हैं? तालीम को रिस्क के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और खुसूसन ऐसे वक्त में अपने बच्चों को अल्लाह के वास्ते, बच्चियों को अल्लाह के वास्ते मदारिस के अंदर डालें, बच्चों को मदरसों के अंदर डालें, जबकि इस्लाम के ऊपर हर जानिब से तूफान बर्पा किया जा रहा है। कभी मस्जिद को लेकर बोला जाता है, कभी मदरसे को लेकर बोला जाता है, कभी कुरान को लेकर बोला जाता है, कभी हिजाब को लेकर बोला जाता है। अगर हमने अपने बच्चे को बचपने में इतना मजबूत कर दिया ईमान के लिए, फिर कोई भी तूफान आएगा वो अपने आप को हरा कर देना पसंद कर लेंगे, लेकिन इस ईमान से सौदा नहीं करेंगे। लिहाजा मौजूदा जमाने के अंदर बच्चों को एक तो तालीम ये है कि अलग अलग हो, और हमारे पास ताकत है तो लड़कियों की अलग निजाम कायम हो, लड़कों की अलग निजाम कायम हो। और फिर ये कि हमारे पास ऑप्शन है मदरसे के, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े पीएचडी होते हैं हदीस में, और वहां भी नौकरियां लगती है। ऐसा नहीं है मैं करके दूं, दुनिया के अंदर पढ़ाई का जो शरह होता है उस एतबार से मदारिस में पढ़ने वाले ज्यादा नौकरी करने वाले भी होते हैं और ज्यादा बेहतर हालत में होते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताऊं जो बहुत अहम है, आज तक जितने लोगों ने इत्तेदाद का इंतकाब किया है, जितने लोगों ने, वो सिर्फ स्कूल के पढ़े हुए, सिर्फ स्कूल के पढ़े हुए हैं, ये जाहिल है से कहीं नहीं पढ़ा है। जिन्होंने मदरसा में पढ़ लिया, अल्लाह बता रहा हूँ, मदरसा में पढ़ लिया, बचपने में अल्लाह की तारीफ बता दी जाती है, अल्लाह को पहचान लेता है। बाद मौत पर इतना पुख्ता अकीदा करा दिया जाता है, आप बड़े आदत बनाए, जमात राबिया जिसे कहा जाता है अरबी जुबान में, यानी मैट्रिक के लेवल तक अगर कोई इब्तिदा से लेकर वहां तक मदरसे में पढ़ ले जाता हो ट्वेल्थ तक, तो वो उम्मीद है कि इत्तेदाद का इंतकाब तो नहीं करेगा, बेअमल हो सकता है, लेकिन दीन इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। लिहाजा जरूरत है कि मदारिस इस्लामिया में अपने बच्चों को भेजने की कोशिश करें। मखलूत तालीम भी क्या कहते हैं, फितना इत्तेदाद का एक अहम जरिया बन चुका है। इसी तरीके से फितना इत्तेदाद का इंतकाब जो होता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, उनमें है स्मार्टफोन का बेजा इस्तेमाल और बच्चों के हाथ में बेवजह दे देना और उनका गलत इस्तेमाल। आप जानते हैं सोशल मीडिया के अंदर अभी चाहे टीवी चैनलों को देखें, सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चे भी बच्चे हैं, कार्टून की शक्ल में उनका दिमाग है, लेकिन मोबाइल चलाते हैं, यूट्यूब खोलते हैं और वहां कोई आप उसमें अच्छाई 1% है, लेकिन 99% खराबियां हैं। वो फौरन आजकल जैसे फेसबुक खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, तो वहां इस्लाम की बुराई के बड़े बड़े हेडिंग में उन्वान आ जाते हैं, बच्चा देखता है और शुरू को शुरुआत में पढ़ता जाता है। मोबाइल का इस्तेमाल हमने देखते, हमारे बच्चे कहाँ, हमने मोबाइल को दे दिया, ये लॉकडाउन की वजह से लेना पड़ गया, और जो दे दिया कोई वालिद दे भी नहीं सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जमाने के साथ चलना जरूरी है। आपका बच्चा क्या जरूरी है, आपको बात भी करनी है ना, पूछना है बच्चा कहाँ गया। ये सिंपल वाला मोबाइल दीजिए, लेकिन जरूरत नहीं पड़ रहा है। ये एंड्रॉइड मोबाइल देने की वजह से चेटिंग होती है उसमें, और चेटिंग के दरवाजे खुलते हैं, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या, वो हाशी बुनियाद बेहयाई बेपर्दा की सब वही भेज रहा है। हमारी बच्चा फोटो खिंचाती है, इंस्टाग्राम में डाल देती है, और फिर मुस्लिम दिन आईटी से लगा हुआ है, बच्ची को हायर करते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चे बिना बहुत आगे जा चुके हैं। लिहाजा मोबाइल पहली फुर्सत में ना दें, और अगर दे भी दिए हैं तो मोबाइल चेक करते रहे, आप चेक करते रहे। बच्चे को कहें कि पासवर्ड ना लगा के रखें, अगर उसने पासवर्ड लगा के रखा हुआ है, मतलब ये कि उसके ज़हन के अंदर कोई फतूर चल रहा है, कोई खराबी पैदा हो चुकी है, वो छुपाना चाहता है। इसलिए मोबाइल, और फिर ये कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो उम्रदराज हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। हमें अक्सर लोग बड़े लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी आपकी वो पढ़ाई उसके जरिए से, मोबाइल के जरिए से, सोशल मीडिया में अच्छाई को फैलाने की कोशिश करें। अगर पकड़ है मीडिया तक, टीवी चैनलों तक, या कहीं भी ट्विटर वगैरह चलाते हैं, तो जरूरत है कि हम वहां भी दीन इस्लाम को फैलाएं। क्या होगा जब अच्छाई और बुराई दोनों
हंसना दिखा जाएगी, पहले बातिल आता फिर बातिल को हक के साथ खत्म कर दिया जाता है। ये मामला शायद वहाँ अच्छे तरीके से खत्म हो सकता है। इसी तरीके से दीन इस्लाम से भागने, अब यहाँ लड़कों के लिए है, क्या वजह है कि दीन इस्लाम को छोड़ रहे हैं, इब्तिदा का इंतकाब कर रहे हैं? उसमें है मादियत परस्ती और नफ्स परस्ती। दुनिया की वजह से, क्योंकि बहुत सारे हमारे नौजवान होते हैं जो मसला अरे इस्लाम में रहेंगे, मुस्लिम बने रहेंगे तो गाना नहीं सुन सकते हराम है, फिल्म नहीं देख सकते हराम है, नाजायज काम ये नहीं कर सकते हराम है। फिर ज़हनी तौर पर ये तमाम चीजें उसके लिए, क्योंकि ईमान पहले कमजोर होता है, कमजोर ईमान की वजह से इस्लाम में जो इबादत के हुक्म है उसको मुसीबत लगने लगता है और तबीयत पर वो भारी लगने लगता है। लिहाजा वो दीन इस्लाम को छोड़ देता है और दुनिया कमाने के पीछे भागता है, नफ्स के पीछे भागता है। एक वजह ये भी है, और एक वजह जो बहुत खास है और वो ये है गुर्बत, लाचारी, मजबूरी। आज बहुत सारे देखों पर आता है कि गुर्बत की वजह से गरीब है, और गरीब इतने गरीब हैं कि मुस्लिम लोग मदद करने के लिए वहां तक पहुंच नहीं रहे। यहाँ जरूरत पड़ती है कि जो मालदार मुस्लिम हैं गुर्बत तक पहुंचे, और गुर्बत की वजह से गैर मुस्लिम उनके घरों में ताउन का सिलसिला जारी किए हुए हैं, ईसाई घरों तक पहुंचते हैं, पहुंच कर ताउन करते हैं, तो ना चाहते हुए भी उनका दिल उनकी जानिब मायल होने लगता है, उनकी खराबियां उनको अच्छाई लगने लगती हैं, और फिर वो बात वहां तक पहुंच जाती है कि दीन इस्लाम को छोड़ देते हैं, जो कि गुर्बत ने उनको मजबूर किया हुआ है। इस गुर्बत को आप शादी के साथ जोड़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये बात समझ में आएगी। एक दीन इस्लाम से दूर भागने के जो लड़कियों और लड़कों की वजह है, उसमें निकाह में देरी करना है और जहेज का डिमांड करना है। अब इसको गुर्बत के साथ जोड़कर देखिए तो देखिए कितने बड़े बड़े फितने आते हैं। हमारे यहाँ निकाह में बेवजह देरी की जाती है, क्या जरूरत है? ये बनेंगे, कोई मंजिल हासिल कर लेंगे, मंजिल में क्या मुराद है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या माशर शबाब मन इस्तताअ फल्यतजव्वज, ऐ नौजवानों की जमात जिनके अंदर शादी करने की ताकत है वो शादी कर ले। अगर शादी कर लेंगे तो फिर उसकी निगाहों गेरों पर उसकी निगाह नहीं पड़ेगी। ये खाली मर्दों के लिए, लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है कि अगर लड़कियां बालिग हो चुकी हैं, माँ बाप उनकी शादी करें। बेवजह शादियों में ताखीर होती जा रही है और नाजायज छुपे रिश्ते कायम हैं, फिर उसे शादी की तरफ आने की जरूरत ही नहीं पेश आती है। हालांकि अल्लाह फरमाता है वहाँ की हुदाया तुम्हारे पास है जो लोग रहते हैं उनकी शादियां कर दिया करो। बल्कि एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ नौजवानों से कहा, मैं उन नौजवानों से कहता हूँ जो कमा रहे हैं, शादियां नहीं कर रहे हैं, वक्त पर शादी करना जिंदगी जो अज़वाज जिंदगी होता है ना, उसके बेहतर क्या कहते हैं, खूबसूरत अच्छे अंदाज में ये रिश्ता चले, उसकी उसूल में से बताते हैं कि वक्त पर शादी कर दिया। वक्त पर शादी का मतलब क्या है? बच्चा बालिग हो, ठीक तरीके से बालिग हो जाए, शादी कर दिया जाए। हमारे यहाँ शादी जब बूढ़ा होता है तब किया जाता है, फिर मुसीबत बन जाता है कि हमारे यहाँ का 30 साल 34 साल 35 साल में शादी हो रही है। ताज्जुब ये होता है कि हमारे घर की लड़कियां भी 30 साल तक बैठी हुई। क्यों बैठी हुई? शादी नहीं, अभी मंजिल का कोई अच्छा लड़का नहीं मिला हुआ है और फिर कोई गैर मुस्लिम अच्छा लड़का मिलता है लेकिन भाग जाता है उसको, या फिर ये मुसलमान लड़का है। याद रखें, एक किताब है नफ्स की हकीकत, नफ्स की हकीकत, डॉक्टर रजील इस्लाम नदवी ने लिखा है। इस किताब को पढ़िएगा, नफ्स की हकीकत। इस किताब में लिखा है कि इंसान को दुनिया में दो तरह की भूख लगती है, एक भूख खाने पीने की और दूसरी नफ्स की भूख लगती है। कहते हैं कि बसा औकात इंसान भूख जो खाने पीने की भूख है बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जिस दिन नफ्स की भूख लग जाती है वो बर्दाश्त नहीं होता है, फिर वो खटाई करते जाता है। लिहाजा शादियां वक्त पे करा देनी चाहिए, शादियां वक्त पे करानी चाहिए, और यहाँ बहुत ज्यादा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे, अब इसको मैंने कहा गुर्बत से जोड़िए, अब गुर्बत से जोड़ेंगे, अब जहेज का डिमांड होता है, बेजा जहेज का डिमांड होता है। अभी गुजरात की एक बच्ची का वाक़या आया है और वो जिंदा है, वो बताइए, आयशा से नहीं जोड़िएगा, वो जिंदा है। वो लड़की गैर मुस्लिम से उसका शादी कर लिया, जब शादी रहने लगी, दोस्तियां होने लगी, वहां वाले गए पूछने के लिए, नडियाद का वाक़या है, पूछने के लिए गए तो गैर मुस्लिम से क्यों बात करती हो, क्यों इनके साथ रहती हो? अलग लड़की ने क्या कहा कि हमारे अब्बा से जाके पूछो, हमारे अब्बा से जाके पूछो हम इनके साथ क्यों हैं। उसके अब्बा तक लोग पहुंचे, कहा आपकी बेटी गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है, दोस्तियां कर रही है। कहा क्या करेंगे, जितने भी रिश्ते हम देखने गए सारे जगहों पे जहेज का डिमांड कर दिया गया, हमने अपनी बेटी को आजाद छोड़ दिया कि जाओ जो करना है करो। तो ये लानत, इस लानत की वजह से, गुर्बत की वजह से बहुत सारे लोग दीन इस्लाम को छोड़ रहे हैं। अब उसने गैर से शादी कर लिया, अब वो
दीन इस्लाम को छोड़ देंगे। इसी तरीके से हमारे घरों के अंदर ये जो फितना में आया है, इतना इब्तिला, उसकी वजूहात में से एक वजह क्या है? सीरियल और फिल्मों का देखना। हमारे घरों के अंदर बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं, हम मर्द हज़ार काम में लगे हैं, औरतें सीरियल में लगे हैं, मोबाइल हैं उनमें भी लगे हैं। कोई भी सीरियल दीन के नाम पर क्यों नहीं बनाया गया हो, चाहे ये उर्दू में आया था या कोई और। उम्मूमन हमारी खवातीन पाकिस्तानी सीरियल देखती है या कहीं की, उनमें एक तो बेपर्दगी को फैलाया जाता है, दूसरे ये कि नाजायज रिश्ते कैसे कायम किए जाते हैं उसका तरीका दिखाया जाता है, और फिर उसको वो अपनाने की कोशिश करते हैं, अप्लाई करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं और मर्द भी कामयाब हो जाते हैं। लिहाजा इन चीजों से अपने आप को दूर करने की जरूरत है और इन पर निगाह रखने की जरूरत है। आखिरी बात यह कि अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, और वो बात ये है कि मेरे भाइयों, इतनी भी बड़ी मुसीबत अभी नहीं आ गई है, लेकिन ये है कि अब जितना सोशल मीडिया पहले भी ये होता आया था, लेकिन पहले दिखता नहीं था क्योंकि टीवी का जमाना था नहीं, मोबाइल का जमाना था नहीं, लेकिन अब जो है बहुत तेजी के साथ दिखने लगा है। मोबाइल जैसे खोले वैसे कोई आता है तो हमारे नौजवान कभी कभार दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और गमगीन हो जाते हैं। ऐसे नौजवानों के लिए मैं नसीहत के तौर पर कह रहा हूँ, वो ये है कि आप अपने ईमान को मजबूत करें। कौन क्या होगा? अपने ईमान को मजबूत करें और अपने आस पास तक कोशिश करें। आप पूरी दुनिया में अभी कोशिश नहीं कर सकते हैं, खुद को मजबूत रखें और अपने भाइयों को, अपने बहनों को, बस्ती में अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर निगाह रखें। ये सोच करके बस्ती की लड़की हमारी लड़की है, अच्छा सोचिए कोई बेटी भाग जाती है, वो बाप जिंदगी में किसी से निगाह मिला पाता है? नहीं निगाह मिला पाएगा, और उस बस्ती वालों के ऊपर भी लानत पड़ जाती है। लिहाजा हमारी जरूरत यह है कि पहली बात तो ये रखें कि अपने मजबूत रखें। जितने लोग इत्तेदाद का इंतखाब कर रहे हैं उससे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका वगैरह में इस्लाम फैल रहा है। दूसरी बात यह है कि बस्ती की लड़कियों पर, लड़कों पर खुसूसी निगाह अपने भाई और अपने बहन समझ कर रखें, लेकिन आप भी उनसे बात नहीं करें। आप कभी लड़कियों से मुस्लिम लड़की क्यों नहीं है बात करना जायज नहीं है। आप उनके वालिदैन तक पहुंचे कि ये बच्ची आपकी ऐसा कर रही है, इसको रोकने की कोशिश करें और फौरन उनके सामने कुरान की आयत पेश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को क़यामत के दिन आपसे पूछेगा कि आपकी बेटी दीन से दूर चली गई थी, आपने कोशिश क्यों नहीं किया था? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। और इसी तरीके से वो हदीस पेश करें कि आपको अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया कर अल्लाह पूछेगा, तो क्या अल्लाह के पास जवाब दे सकते हैं? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। बातें बहुत हैं, लेकिन इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। वो ये है कि हालात बताते हैं कि दीन इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा सीखा जाए। अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया में डालें, अपने बच्चियों को मदारिस इस्लामिया में डालें, क्योंकि जब बच्चियां आलिमा बन जाएंगी तो नस्लों को सुधार जाएंगी। और अगर आपकी बच्चियां दीनदार नहीं है, फिर आप जो बीवी ला रहे हैं, जो नौजवान है, अगर आपकी बीवी अगर गैर तालिबा है, दीन की तालीम से वाकिफ नहीं है, तो आप अपने बच्चों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तरबियत के लिए। बीवी की भी तरबियत करनी पड़ेगी और बच्चे की भी। लेकिन अगर आपने आलिमा लाया और अपने बच्चियों को आलिमा बना दिया, तो आगे चलकर जो नाती या पोता पोती नवासे होंगे, उनकी तरबियत उनको खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद की बातों पर गौर किया जाएगा। हमारे अलहम्दुलिल्लाह।